हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर जो है किंग्स, फार्मर एंड टाउन, अर्ली अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक्स, यानी देखा जाए तो कक्षा 12वीं का इतिहास का है। अध्याय जो है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे हम यहाँ विचार विमर्श करेंगे और हर एक पहलू पर जो है नज़र दौड़ाएंगे। और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की एक लड़ी रहेगी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से रहेगा। हम कुछ क्वेश्चनों को यहाँ करेंगे जो पॉइंट व्यू पे रहेगा और साथ में ये क्वेश्चन जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपके समक्ष प्रस्तुत रहेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और यहाँ पर क्वेश्चन जो रहेंगे काफ़ी महत्व रखेगा। लेकिन दोस्तों, आपको पता है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, आरएनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we discussion most important chapter here, the kings, farmers and town, early states and economy. That's important chapter for class 12 history here. The next question arrive here, that's important. Explain the notions of kingship during the Kushan and Gupta Empire. You know that is an important question here. Explain the various of notions of kingship during to the Kushan and Gupta Empire. That's an important question. In the 1st century BC, Kushan ruled over to the vast kingdom extended from the Central Asia to the northwest India. That's important here. The 1st century here, the Kusans ruled the kingdom extended to Central Asia to North India. And this history has been reconstructed from the inscription and textuals as a traditions here. You know that that's important. Inscription and textures here. The notion of kingships, there are visit to the project are whereas the base evidences in there is a coins and sculpture. That's important. The coins and sculptures here for the evidence of here a brief nation of kingdom during to Kusan and Gupta Empire. The questions is the state of Kushan. The ruler were found to the Mathura and Afghanistan here. You know that is important. The Kushan status of the Kusan ruler were to found in the Mathuras and Afghanistan. According to the some historians, this tend to the indicated the Kusans through that himself like a god. That's important. There is historians this tend or indicate that is a Kushan saw that himself like a god. And several Kushan rulers assume the title Devputra. The titles here take here Devputra means are son of God. Whereas they are influenced by the Chinese leaders who call themselves of sons of heaven. You know that that's an important point here. Several Kushan rulers assume the titles Devputra. Devputra means son of God. Another Chinese leader who is called himself sons of heaven. That's important here on this time. On the other hand, historians of Gupta Empire has been taken from to the literatures, coin and inscription including a prestigious here. Note that is important, the coin, inscription and literatures here. Parasites were composed in the passage of King and Platon's in the journal. That's important. The famous Prayag Prasastis composed the Harisens
the court poet and Samudragupta. That's important. Harisen is the court poet of the Samudragupta here as a powerful document to know about the Gupta rulers. That's important. The famous Prayaga Prasastri is composed the Harisen. Prayaga Prasastri is composed of here Harisen, the poet of a court of Samudragupta. That's important point here for the exam view. यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, राजा, किसान और नगर, प्रारंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर हमारे समक्ष आया है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कुषाण और गुप्त साम्राज्य के दौरान राजस्व की धारणाओं का संक्षिप्त वर्णन करें। जब कुषाण और गुप्त साम्राज्य थे तो उन समय वो लोग किस प्रकार की धारणाओं से ग्रसित थे, किस प्रकार की धारणाएं वो लोग लेते थे। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण दिलचस्प क्वेश्चन बनने वाला ये कि कुषाण और गुप्त साम्राज्य के दौरान राजस्व की राजधाराओं जो धारणाएं थी वो किस प्रकार की थी। कहते हैं पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाणों ने मध्य एशिया से उत्तर पश्चिमी भारत तक जो है फैले एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया करते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाण ने मध्य एशिया से उत्तर पश्चिमी एशिया भारत तक फैले एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया करते थे। कहते हैं इनके इतिहास का पुनर्निर्माण शिलालेखों और पाठ्य परंपराओं से किया जाता गया है। यानी इनके इतिहास जो है पुनर्निर्माण शिलालेखों और पाठ्य परंपराओं से की गई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इवन देखा जाए तो राज सत्ता की जो धारणाएं वो प्रदर्शित करना चाहते थे वो शायद उनके सिक्के और मूर्तियों में सबसे अच्छी तरह से प्रमाणित भी किया है। यानी कुषाण हो या गुप्त साम्राज्य हो, उनके बारे में सबसे अधिक हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सिक्कों से मिली है या मूर्तियों से मिली है, और इन्होंने प्रमाणित भी किया कि इस समय इनकी काफ़ी महत्वपूर्णता थी। इवन देखा जाए तो कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियाँ मथुरा और अफगानिस्तान में भी मिली है। यानी कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियाँ मथुरा और अफगानिस्तान में मिली है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण धारणाएं हैं जो हमें उस समय काल में मिली है। और मथुरा, अफगानिस्तान हो, सभी क्षेत्रों में कुषाण शासकों की बहुत सी चिन्ह जो है हमें मिली है। इससे ये पता लगता है कि इनका जो फैलाव थी मथुरा से लेकर अफगानिस्तान तक थी और इनका व्यापार पद्धति इन सारे क्षेत्रों में चलाई जाती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह प्रवृत्ति इस बात की ओर भी संकेत करती है कि कुषाण स्वयं को भगवान के समान समझते थे। यानी देखा जाए तो जितने भी राजा हुए अपने आप को भगवान का जो है दर्जा हासिल करना चाहते थे। तो ये बहुत से इतिहासकार का ये प्रवृत्ति रही है और इन्होंने संकेत भी दिया है कुषाण स्वयं को भगवान के सामान्य समझते थे। और कई कुषाण शासकों ने तो यहाँ तक देवपुत्र का भी टाइटल ग्रहण किया। देखा जाए तो कई कुषाण शासकों ने देवपुत्र का जो है टाइटल ग्रहण किया। इसका अर्थ होता है भगवान का पुत्र। कहते इसका धारण किया और शायद वह चीनी नेताओं से काफ़ी प्रभावित थी, क्योंकि चीनी खुद को जो है स्वर्ग का पुत्र किया कहा करते थे। यानी देखा जाए तो जितने भी राजा महाराजा हुए या जितने भी बाबा हुए वो सब के सब अपने आप को जो है ईश्वर के पुत्र के रूप में परिभाषित किया। तो ये परंपराएं आज से नहीं है, पुराने समय काल से है। जो लोग स्वयं को जो है ईश्वर का पुत्र बना के धरती पे अपने आप को महानता की कसौटी पे खड़ा उतरना चाहते हैं। और ये बात कुषाणों ने के साथ साथ जो है चीनी लोगों ने भी ऐसी पद्धतियों का जो है अनुसरण किया। कुषाण ने अपने आप को देवपुत्र के रूप में परिभाषित किया, यानी भगवान का पुत्र। वहीं चीनी शासक जो थे वो खुद को स्वर्ग का पुत्र कहा करते थे। यानी देखा जाए तो जनरली दोनों का अर्थ यही होता है कि वो ईश्वर का पुत्र है और वो ईश्वर के ही समान है, यानी उसको सारे जनता जो है भगवान के रूप में दर्जा दे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसा परंपरा कहते पुराने समय में भी चलता था और आज में भी है। आज भी देखिए बहुत से जो बाबा लोग हैं अपने आप को सोचते हैं कि मैं भगवान का पुत्र के रूप में हूँ, लोग मुझे चाहें, और लोग भी उनको उसी तरह जो है दर्जा भी देते हैं, उन पे पागल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं ईश्वर का पुत्र कभी भी ऐसे नहीं होते हैं, वो किसी के सामने दिखावा नहीं कर सकते हैं। कहते हैं जो दिखाते हैं वो कभी भी सच्चे नहीं होते हैं, और ये बात सत्य है। दूसरी ओर गुप्त साम्राज्य का इतिहास
जो है प्रस्तुतियाँ सहित साहित्य और सिक्कों और शिलालेखों से हमें लिया गया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर पॉइंट जो रहती है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहती है। यहाँ पर अगर आप 5-6 पॉइंट याद कर लेते हो तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो इसलिए त्रिपान स्टडी सेंटर हमेशा आपको पॉइंट व्यू ही लेके आता है, जिससे आप आसानी से भी जो पॉइंट आपको आसान लगता है उसको याद करके एग्ज़ाम में कर सको। इसलिए आपके लिए त्रिपान सेंटर हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता है, तो आपको हमेशा त्रिपान सेंटर की सहायता करने की आवश्यकता बनी रहती है। अगर हम अगले पॉइंट की तरफ नज़र करें तो ये साफ कहता है कि प्रस्तुतियाँ सामान्य राजाओं और संरक्षण की प्रशंसा में लिखी जाती थी। ये बात तो आपको साफ पता होगा कि पहले के समय में जो भी शिलालेख लिखी गई वो राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई। कोई भी लेखक जो था राजा को नाराज़ नहीं कर सकता था, इसलिए वो राजा घटिया हो, क्रूर हो, किसी प्रकार का हो, दुराचारी क्यों ना हो, उसके लिए हमेशा जो लेखकों ने अच्छे विचारधारा का ही अनुसरण करवाया है। लेकिन बहुत से उसी काल में जो पोएट थे उन्होंने उस राजा के बारे में क्रूरता का भी बखान साफ शब्दों में किया है। तो देखा जाए तो उस समय जितनी प्रतियां सामान्य राजाओं के संरक्षण की प्रशंसा में ही लिखी जाती थी। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा चरित्र प्रसिद्ध प्रसिद्ध गुप्त शासकों के बारे में जानने के लिए एक शक्तिशाली दस्तावेज है। यानी देखा जाए समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रसिद्धि गुप्त ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जो कि समुद्रगुप्त की दरबारी कवि था और उसने समुद्रगुप्त की सारी बातों को जो है अनुसरण भी किया और उसके बारे में बताया भी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट है। इसी के साथ हमारा ये ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, क्योंकि ये तो अच्छा आपको लगेगा ही, क्योंकि यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर आपके लिए पॉइंट व्यू लेके आया है। क्वेश्चन जो है हर जगह विशेषता से भरी पड़ी है, तो उसको करना आपके लिए आसान है, अच्छा लगता है। जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों के लिए केयर हो सकता है। कहते हैं अपना भलाई सब करता है, दूसरे की भलाई करना ही एक इंसानियत का प्रचालक होता है। कहते हैं कोई अपने आप को देवदूत कह ले, भगवान का पुत्र कह ले, या स्वयं को कुछ भी कह ले, कहते हैं सच्चा इंसान उसी में बसता है जो सच्चे कर्म करता है, और कर्म करने वाले ही ईश्वर का सच्चा पुत्र कहला सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इसे जितना हो सके दोस्तों शेयर करने की भावना बरकरार रखिए, और कभी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी खतरनाक रहता है, स्किप करके ना देखिए, ठीक है। कहते हैं अगर आपको यह पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जनरल सी बात है दोस्तों, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आने वाला समय में आपको वीडियो प्राप्त हो सकेगा। और त्रिपान स्टडी सेंटर जो है 8 से लेकर MA तक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।